Just now play short order in SBI Life at 1303.40. Stop loss is placed at 1305.10. Let's see if it picks my order and then falls. It has created this bearish candle at the top. This is a misplaced candle. So with that, place my order. So let's see. Okay, just now the sell order has been executed. Now let's see, wait and watch. It should fall down from this level now. Good reaction by bears on the exact level, and there is a whole figure of 1300 which needs to be broken now. Good challenge for the bears. Let's see if it breaks, it will fall down. Place my target order at 1296.20, which is 1:4.2 stereo ratio trade. As discussed, bulls have taken this 1300 whole figure. Also, there is a previous day high. So my stop loss is in danger, so don't worry. Stop loss is part of game. Okay, so this was a stop loss trade today. No need to worry. Just now I have re-entered in SBI Life, same trade at 1304.70 with the stop loss of 06.55. So let's see what happens. It was based on this candlestick. Immediate reaction from this day high, immediate reversal. Though the bulls tried with the high volume, the bears attack and close the low. So at this low, I have taken the position. So let's see what happens. Very good reaction by bears, quick fall. So hope so it will now break this low and this low. I'll place my target order at near yesterday's close, that is 1295.20, which will be 1:5 restore order shorted. Once it breaks this 1300 comfortably, it can fall further. So let's see what happens now. Finally, after a long wait in playing in my entry area, finally the force of the bears arrived, and I think now it will going to break down and hit my target. Okay, after a good fall, the price has been stalled, so either it will go up or down. So to be on safer side, I have trailed my trailing stop loss to 1300 exact figure. So let's say it will be 1:2.5 second trade. So considering loss in the first trade, it will be okay to exit in some compromise rather than waiting till the target. Very good fall. Just saved my stop loss here because of the whole figure. Last push required by the bears now. Now I will trail my stop loss to 99. Okay, finally, now trail my trailing stop loss to 98. Okay, the trailing stop loss has been hit. So this was overall 1:3.6 restore was shorted. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन एसबीआई लाइफ. दो ट्रेड एक्चुअली, वन स्टॉप लॉस एंड वन 1:3.5. सो उससे पहले एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में कि स्टॉक एग्जैक्टली कौन से दिन ट्रेड करना होता है, ये समझ में नहीं आ रहा. लेवल्स आते हैं, डेली वॉल्यूम का स्टडी हो जाता है, लेकिन कौन से दिन वो पिक कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 फेब का मेरा विप्रो का ट्रेड है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ एक प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया था, स्टॉक सिलेक्शन टू एग्जीक्यूशन, वो थोड़ा जाके देखिए. अब सेम प्रोसेस मैं अभी भी बोलता हूँ ये ट्रेड में. तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये हायर लो स्ट्रक्चर में है, एक्चुअली अप ट्रेंड में है. लेकिन अगर नॉर्मल एनालिसिस करें तो ये सप्लाई जोन में है, सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है फर्स्ट थिंग. आरएसआई के नज़र में से देखें तो ये हायर हाई प्राइस में लोअर हाई आरएसआई में मतलब निगेटिव डाइवर्जेंस है, तो थोड़ा निगेटिव साइन है.
ये हुआ नॉर्मल चीज जो नॉर्मल ट्रेडर देखते हैं किसी स्टॉक में। और अगर ऐसा मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके लेके ऊपर जा रहा है, मतलब दिस इज कंसिडर्ड एट द पॉजिटिव साइड। लोग यहाँ बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा नजरिया थोड़ा अलग होना चाहिए। तो अपने मेथड से देखेंगे तो ये जो 8 अगस्त था वो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था अगस्त में, और जो जुलाई मंथ का ब्रेकआउट वॉल्यूम था एंड डिलीवरी वॉल्यूम का। तो ये आइडेंटिफाई हुआ, डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट आया मंथली, तो सिंपली उसका हाई एंड लो हम मार्क कर सकते हैं। और इस कैंडल ने कुछ अच्छा किया है क्या, अच्छा मतलब कुछ सिग्निफिकेंट किया है क्या? हाँ जरूर किया है। क्या किया है? जुलाई मंथ का हाई ब्रेक किया है। अगर ऐसा है, जुलाई मंथ का प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेकआउट है विथ हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे कौन आया है? यहाँ पे बायर्स आए हैं, जो कि डीपी में ट्रांजैक्शन हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम हाईएस्ट है, मतलब इन्वेस्टर की एंट्री हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वो सही हो, वही हो, ऐसा नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट होता है प्राइस का कि कहाँ ये हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा चार्ट जूम आउट करने के बाद ये पता चलता है कि ये पूरा सपोर्ट एरिया था और ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम दिख रहा है, ये तो खैर ऊपर का है। ये जो वॉल्यूम दिख रहा है वो ये सपोर्ट एरिया में वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे बड़े लोगों का एंट्री हुआ है तो यहाँ पे वो सेल करेंगे क्या इस वॉल्यूम में? नहीं, दे विल ऐड पोजीशन मे बी, एजम्पशन है। सच कौन बाय करता है, किससे बाय करता है, ये पता नहीं चलता मार्केट में, लेकिन हमारा काम तो एजम्पशन पे चलता है कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गया तो शायद यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जिसने बाय किया वही बाय करेगा, जो बड़ा आदमी है, जो मार्केट मूव कर सकता है। तो ये जो सेलिंग दिख रहा है यहाँ पे रेड कैंडल, वो शायद सेलिंग का कैंडल हो ही ना, मतलब यहाँ पे सेलर होंगे लेकिन वो रिटेलर होंगे जिनको पता नहीं, जिनको ये दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, अब सेल करना है। लेकिन यहाँ पे खरीद कौन रहा है, क्योंकि अब बाद में गिरा नहीं है। खरीद कौन रहेगा? ये बड़े आदमी जो यहाँ पे बाय किया है। तो ऐसा मार्केट का थोड़ा एनालिसिस होना चाहिए, तब करना आना चाहिए। अब ये 2 दिन का वॉल्यूम सेम है लेकिन प्राइस नीचे गिरा नहीं, मतलब यहाँ पे एब्सॉर्ब हुआ है, जो भी सेलिंग हुआ है यहाँ पे सब एब्सॉर्ब हुआ है बाइंग ऑर्डर से, इसलिए यहीं से प्राइस ऊपर गया है। अब एक बात सोचनी चाहिए कि यहाँ पे अगर इतना बाइंग हुआ है और ये हाई ब्रेकआउट होने के बाद हमको ये वॉल्यूम दिख रहा है, तो क्या ये लोग यहाँ पे जो बाय किए वो फिर से इस हाई पे बाय करेंगे क्या? सोचने वाली बात में मे बी और मे नॉट बी, दोनों हो सकता है। वो कैसे? अगर इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ पे अगर सस्टेन करता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो हम फिर से मान सकते हैं कि यहाँ पे बड़े लोगों का भी एंट्री हुआ है। अगर नहीं तो ये है ट्रैपिंग ऑफ रिटेलर्स, जिन्होंने ब्रेकआउट देख के सब बाय किया है। ऐसा प्राइस और वॉल्यूम का अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेस्ट कि ये कहाँ चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंटली ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ठीक है, तो इस हाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए बायर्स, इस लो को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, प्राइस नीचे आया धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब ये ब्रेक इनसाइड हुआ है, ब्रेकआउट फेल हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिख रहा है ये वॉल्यूम, ये सेलर्स का है, जिन्होंने ऑफलोड किया है, जिन्होंने नीचे बाय किया है उन्होंने ऑफलोड किया है स्टॉक किसी और को, इसीलिए प्राइस नीचे आ रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। अब रही बात ट्रेड की, अब ये जो 8 अगस्त है उसमें हम एक इम्पोर्टेंट कैंडल मार्क करेंगे। 8 अगस्त ये है, यहाँ पे लो लगा, यहाँ पे हाई लगा, और इसमें इम्पोर्टेंट कैंडल ये है। थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस दिन में इस लोकेशन पे है, तो ये प्रोटेक्ट होना चाहिए अगर यहाँ पे बायर्स है। अगर ये नीचे जा रहा है मतलब ये रेजिस्टेंस हो सकता है, एजम्पशन है, वंस अगेन ये एजम्पशन है।
अब ये रेजिस्टेंस है, ये पहली बार कब पता चला? जब यहाँ पे पहली बार प्राइस टकरा के नीचे गया तब पता चला कि ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम ये दोनों लेवल से सेल का सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये इंक्रीज वॉल्यूम के साथ अंदर गया, जाने की कोशिश की थी बायर्स ने, लेकिन फेल हो गए, सेलर्स आ गए फिर से। इस दिन में वॉल्यूम इंक्रीज है, फिर से ट्राई हुआ, फिर से फेल हुए। इस दिन के बाद से ये 4 दिन हमारे वॉच लिस्ट में ये हो सकता है। सिर्फ ये देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में ये क्या कर, डेली टाइम फ्रेम में तो देख लिया कि 5 मिनट में ये क्या कर रहा है। अब एक के बाद एक दिन देखेंगे कि इस दिन से चालू करेंगे 23 अगस्त से क्या चल रहा है वो उस लेवल पे। यहाँ से बाय नहीं करेंगे क्योंकि हमें भरोसा नहीं कि यहाँ से बायर आएंगे कि नहीं, इसलिए ये लेवल हटा देता हूँ। 23 अगस्त को बहुत देर से यहाँ पे आया, लेकिन एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। ये ट्रेड नहीं हो सकता इतने देर में। यहाँ पे पहले ही ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे सेल का चांस ही नहीं है। वो यहाँ से बाय का भी चांस है क्योंकि ये रेजिस्टेंस पड़ा है ऊपर। तो ये हेड एंड शोल्डर बनाया, ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे चांस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर गया था सुबह। अभी टाइम भी नहीं इतना ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए। नेक्स्ट डे तो नीचे रहा, नीचे रहा। अब आज का दिन है। आज का दिन अगर देखेंगे तो ये इसके नीचे क्लोजिंग है, इसके नीचे ओपनिंग है, मतलब वीक ओपनिंग है। अब यहां से संभावना है 100%, 100% नहीं, अपने हिसाब से 100% कि नीचे आ सकता है, एजम्पशन है। अब जब ये ऊपर जा रहा था तब ये कैंडल बना, जो कि मैंने लाइव ट्रेड में बताया कि जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये मिसप्लेस कैंडल है, वो भी विथ वॉल्यूम है, मतलब कहीं ना कहीं ये सेलर का एंट्री है। तो मैंने ये दोनों कैंडल का जो ये लेवल था, इस कैंडल का ओपन वो था 3.45। तो 3.4 पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया। थोड़ा जल्दी हुआ ये सब काम। तो 3.4 पे मेरा शॉर्ट एंट्री था। स्टॉप लॉस अगर ये लगाता था मैं तो 0.2 था, लेकिन उससे भी कम स्टॉप लॉस मैंने 3 मिनट में जाके देखा। ये सेम कंडीशन था। तो ये जो बेयर्स का अटैक था, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, इसके ऊपर 5.05 और 1 आई थिंक। तो टारगेट नीचे था थोड़ा। तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, इसमें छोड़ भी सकता था। कब छोड़ सकता था? अगर ये हाई जो डेली था, मतलब आज के डे का जो हाई था, अगर ये ब्रेक होता इस वॉल्यूम से, क्योंकि ये बायर का वॉल्यूम है, बायर ने जोर से ट्राई किया है ऊपर जाने का, फिर क्लोज क्यों नहीं कर पाए? ये पूरा एरिया तो रेजिस्टेंस एरिया ही है। शायद जैसा मैं हमेशा बायर ट्रैपिंग को ढूंढता हूं और सेल करता हूं, वैसे आज मैं ट्रैप हो गया पहले ट्रेड में। ऐसा मैंने मान लिया कि मेरा ट्रैपिंग था, मेरा बाइंग ऑर्डर ही था ये, जो स्टॉप लॉस का था ये। अगर बायर होते यहाँ पे तो शायद ये यहाँ पे क्लोज होके इधर से ऊपर चला जाता। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही रेड आ गया एकदम। लोअर क्लोजिंग कैंडल है, लोअर क्लोजिंग मतलब बॉटम मोस्ट क्लोजिंग है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ है वीकनेस की, सेलर्स की स्ट्रेंथ है। तो इमीडिएटली मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, जो था 4.7 था, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर था। जैसे इस कैंडल के ऊपर लगाया था, तो सेलर को ध्यान में रख के इसी कैंडल के ऊपर रखा था, 6.55 समथिंग। और टारगेट ट्रेल करते गया मैं आज, कल जैसा। और शायद मैं 98 पे निकल गया। हालांकि सब दे दिया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा ही दिया था, लेकिन वो पहला स्टॉप लॉस था, दूसरे में ठीक ठाक मिल रहा था, इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया। तो ऐसा होता है प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस। अब आप कहोगे कि इसमें कोई फॉर्मूला है का? अगर आपको लगता है ऐसा कुछ फॉर्मूला है जो डेली कौन सा स्टॉक लेना है वो पता चले, तो पहला ये आपके दिमाग में से निकाल दो कि ऐसा कुछ नहीं है। एक ही चीज बता सकती है कि कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है, वो है आपकी आंखें, दैट इज आईज
ट्रेनिंग ऑफ आईज वो करना ही पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। इतना आसान है नहीं, मुझे पता है, लेकिन जो भी बताएगा ना वो एकदम स्लो स्पीड में से, देखो ये 2x स्पीड से देखने का वीडियो नहीं है। धीरे 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 ये समझने लगता है प्राइस एक्शन कैसा चलता है। होप्स आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।